Hi, this is Shruti Pandey from the Department of Chemical Engineering at IIT Kanpur, and I welcome you all to Lecture 13 of amines. So, till now, we have completed everything about the amines and the diazonium salts as well, like talking about the preparation of amines and the diazonium salts, the chemical reactions which are involving amines and diazonium salts. So, in the last lecture, we were doing some examples which are related to the conversions. Today also, this lecture, this the last lecture of amines is dedicated to the problems and the questions. So we will directly start with the questions. I will try to cover all the kinds of questions that can be possible from this chapter, and they also involve the other class of organic compounds as well. ठीक है, तो वो link you should always try to link one class of organic compounds with the other class. ठीक है, तभी आप conversion वाले questions easily कर पाओगे. ठीक है, so we will begin with the questions. So this conversion says you have to convert nitromethane to dimethylamine. ठीक है, तो बेसिकली नाइट्रोमीथेन इज CH3NO2 एंड उससे आपको डाईमिथाइल अमाइन बनाना है. नाउ डाईमिथाइल अमाइन क्या होता है? ये. ठीक है, सो इट इज अ सेकेंडरी अमीन. सो वी व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, उस टाइम में टू प्रिपेयर द देयर आर डिफरेंट वेज दैट यू कैन प्रिपेयर द प्राइमरी अमीन्स. देयर आर other different ways that you can use to prepare secondary or tertiary amines. ठीक है, तो उस केस में when we were to prepare the secondary amines, we generally go through the we can do it using the isocyanide isonitrile group. ठीक है, तो साइनाइड ग्रुप क्या होता है? NCN. ठीक है, व्हेन R के साथ में आपका CN लगा है, दिस इज साइनाइड और नाइट्राइल. एंड व्हेन आपका R के साथ में NC लग जाता है, सो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड. ठीक है, तो अगर हमें सेकेंडरी अमीन बनाना है तो ओनली दिस इज द बेस्ट वे यू कैन गो थ्रू. तो आपको किसी तरीके ये इंक्लूड करना पड़ेगा अपने reactant में, that is isocyanide. So what happens is कि in the amines also when we were doing the chemical reactions, ठीक है, तो अगर हमें isocyanide include करना है तो कार्बिलामीन reaction is the only way. ठीक है, in the amines कार्बिलामीन reaction में that is generally used as a test for the primary amines. उसमें क्या होता है कि when you react it with the chloroform in KOH and then heat the reaction mixture, तो उसमें यू गेट द फाउल स्मेलिंग सब्सटेंसेस एंड दोज आर आइसोसाइनाइड्स. ठीक है, तो आप उस तरीके से आइसो मतलब एनसी ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाइए और फिर यू यूज द प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स मेथड टू गेट टू दी फाइनली रीच दी सेकेंडरी अमीन. तो आई विल राइट डाउन द रिएक्शन. तो बेसिकली आपको चाहिए अमीन. ठीक है, तभी तो आप उसे आइसोसाइनाइड बनाओगे. तो आपको नाइट्रो ग्रुप को अमीन में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो उसके लिए भी यू नो we will use a preparation method. So we have nitromethane. So we will use a reducing agent, metal in acid. ठीक है, उससे हमें क्या मिलेगा? NO2 group will reduce to NH2 group. Now NH2 group को आपको आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना है. तो you can carry out the carbylamine reaction. ठीक है, कार्बिलामीन रिएक्शन इज द ओनली वे यू कैन कन्वर्ट एन अमीन टू आइसोसाइनाइड. तो कार्बिलामीन में क्या था? क्लोरोफॉर्म in QH and heat. So you will get CH3 NC. ठीक है, now you can use another preparation of amine which involved I mean which involved the conversion of isocyanide to the secondary amine. तो इसमें आपको सोडियम in ethanol. ठीक है, so this reagent can convert, it can also reduce, it is also a kind of a reducing agent. क्योंकि आप देखो यहाँ पे NC में क्या हो रहा है, सिंपली यहाँ पे NH ऐड हो जा रहे हैं ऐसे. ठीक है, तो दिस इज CH3NH CH3. तो
आई गेस दिस वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ कन्वर्जन जिसमें कि आपको सेकेंडरी अमीन बनाना है, क्योंकि जनरली आपको प्राइमरी अमीन्स के ही रिएक्शंस मिलते हैं, बट दिस कैन बी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आप देखो बेसिकली वी आर यूजिंग टू प्रिपरेशन मेथड्स। ठीक है, पहले मेथड में आपने अमीन प्रिपेयर किया, प्राइमरी अमीन, और थर्ड स्टेप में भी आपने प्रिपरेशन यूज किया अमीन का, एंड इन द सेकेंड स्टेप यू आर यूजिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ऑल द प्रॉपर्टीज बेसिकली ऑल द काइंड्स ऑफ रिएक्शंस आर बी यूज्ड। So we will move on to the next conversion which says nitrobenzene to benzoic acid. ठीक है, तो अगर आप देखो नाइट्रोबेंजीन is simply NO2 group is attached to the benzene ring, और benzoic acid में the COOH group is attached to the benzene ring। ठीक है, तो इसमें अगर आप when you compare the reactant and the products you will see कि one carbon atom is increased। ठीक है, प्रोडक्ट में एक कार्बन आटम एक्स्ट्रा है, वो जो बेंजोइक मतलब जो एसिड वाला ग्रुप होगा COOH, उसमें एक एक्स्ट्रा है कार्बन आटम। ठीक है, तो आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर आल्सो इन द सेवरल क्वेश्चंस कि अगर एक कार्बन आटम बढ़ाना है तो यूजिंग साइनाइड इज द बेस्ट टेक्निक। तो आपको यहाँ पे नाइट्रो के जगह पे यू फर्स्ट नीड टू इंट्रोड्यूस द साइनाइड ग्रुप, CN ग्रुप। ठीक है, और CN इन द केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, हम अल्काइल हैलाइड से बना नहीं सकते। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था जिसमें कि एलिफैटिक कंपाउंड्स यूज हो रहे थे। ठीक है, तो अगर हमें एलिफैटिक कंपाउंड्स में साइनाइड ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है तो हम लोग डायरेक्टली अल्काइल हैलाइड से भी करवा सकते हैं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तो साइनाइड आ जाएगा। बट इन द केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स हम लोग हैलाइड यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू इस केस में हम लोग डायजोनियम सॉल्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एरोमेटिक कंपाउंड में साइनाइड या फिर फ्लोराइड और या फिर आयोडाइड इंट्रोड्यूस करवाना है तो यू शुड ऑलवेज यूज दी डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, क्योंकि एरोमेटिक है तो वी नीड टू गो थ्रू डायजोनियम सॉल्ट, उसके लिए हमें अमीन चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली N2Cl तो बनेगा नहीं, फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट नाइट्रो टू अमीन। ठीक है, तो नाइट्रो से अमीन बनाने के लिए वी सिंपली हैव टू यूज द रिड्यूसिंग एजेंट। सो आई विल राइट डाउन दिस सीरीज रिएक्शन। वी हैव दिस NO2, जब हम इसका रिडक्शन करवाते हैं, I have already discussed the ways, the reducing agents that you can use for reducing the nitro to amine in the preparation of amines। ठीक है, तो उसमें this catalytic hydrogenation was also one method। So this is catalytic hydrogenation। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हमें क्या दे देगा, एनिलीन। अब अब आपको समझ में आने लगा होगा कि व्हाट वी विल डू, एनिलीन क्या, सो वी कैन डायरेक्टली गेट N2Cl यूजिंग द इन सीटू प्रिपरेशन, और टेम्परेचर इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से हमें N2Cl बना, अब हमें क्या करना है, N2Cl में हमें साइनाइड इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, तो साइनाइड इंट्रोड्यूस करवाने के लिए वी हैव यू नो वी हैव टू यूज द सैंडमियर्स रिएक्शन CuCl, क्योंकि गैटोमैन में साइनाइड इंट्रोड्यूस नहीं होता, गैटोमैन इज ओनली फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स। तो दिस इज द सैंडमियर्स रिएक्शन। यहाँ पे डायरेक्टली यू विल गेट CN। ठीक है, और अब आप इसको यू कैन डू दी हाइड्रोलिसिस। जनरली एसिडिक मीडिया इज प्रेफर्ड, और ये CN जो है वो डायरेक्टली COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इवन फॉर द एलिफैटिक कंपाउंड्स आल्सो हमने यही देखा था कि अगर हम एलिफैटिक साइनाइड लेते हैं तो हम उसका भी डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस करवा के वी कैन गेट द एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। बट हाउ डू वी प्रिपेयर द एलिफैटिक साइनाइड, दैट वे इज डिफरेंट। ठीक है, तो अगर आपको कार्बन इंट्रोड्यूस करवाना है इन द केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स तो आपको डायजोनियम सॉल्ट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ठीक है, और अदरवाइज इफ इट्स फॉर द एलिफैटिक कंपाउंड्स देन आप अल्काइल हैलाइड के थ्रू भी जा सकते हो, मतलब अल्काइल हैलाइड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एलिफैटिक के केस में यू कैन नॉट फॉर्म द डायजोनियम सॉल्ट ऐसे, इट्स नॉट स्टेबल। ठीक है, तो आप इसको बाइफरकेट कर लो, आई विल ऑल्सो मेंशन इट हियर क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यू माइट गेट कंफ्यूज्ड।
I'll write it as ascent of series. Ascent का मतलब you are increasing the carbon atom. ठीक है, तो if it's if the compounds involved are aliphatic in nature, then आप क्या करोगे, आप क्लोराइड को कन्वर्ट करोगे डायरेक्टली क्लोराइड टू साइनाइड और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करवा दोगे। ठीक है, ये डिफरेंट रहेगा। और एरोमेटिक के केस में यू सिंपली हैव टू यूज N2Cl टू गेट टू साइनाइड। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है। I mean, it's not a part of the question, it's a general advice. This is chlorine. ठीक है, so this was, now the next question is benzene to M bromophenol. ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या क्या इंट्रोड्यूस करवाना है प्रोडक्ट में, यू हैव टू इंट्रोड्यूस दी हाइड्रोक्सी ग्रुप पहले एंड देन द ब्रोमीन ग्रुप। ठीक है, अच्छा आप ये देखो कि दिस दिस इज एम ब्रोमोफेनॉल। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जब आप इंट्रोडक्शन करवा रहे हो तो आपको पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट करती है। वाई? क्योंकि आपको पहले को इसमें दो चीजें इंट्रोड्यूस करनी है, ब्रोमीन और हाइड्रोक्सी। अब आपको पहले कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है ये पोजीशन बताएगा। ठीक है, इफ यू लाइक दिस इज मेटा राइट, तो आपको ऐसा करना, ऐसा सीरीज बनाना पड़ेगा कि जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो मेटा पोजीशन पे हो। क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं विच आर गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड इन द बेंजीन रिंग, दे डिसाइड द पोजीशन ऑफ अनदर सब्स्टिट्यूएंट विच इज कमिंग टू बी अटैच्ड। ठीक है, तो इस वजह से लाइक अगर आप पहले हाइड्रोक्सी ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाने के बाद आप अगर ब्रोमीन इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो द पोजीशन विल नॉट बी मेटा, इट विल बी आइदर ऑर्थो और पैरा। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या ट्राई करेंगे, हम पहले ब्रोमीन ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और फिर बाद में हाइड्रोक्सी ग्रुप लेके आएंगे। ठीक है, तो ब्रोमीन के केस में क्या होगा कि हम ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस कैसे करवाएंगे, ब्रोमिनेशन करवाना है तो हम डायरेक्ट ब्रोमिनेशन तो रिंग में नहीं करवा सकते। ठीक है, तो हम कैसे जाएंगे, इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस द ब्रोमीन, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू द नाइट्रोबेंजीन। ये हमारा बेंजीन, इसका नाइट्रेशन करवाएंगे। नाइट्रेशन में वी यूज HNO3 एज वेल एज H2SO4। ठीक है, बोथ द एसिड्स। ठीक है, तो व्हेन यू डू द नाइट्रेशन, नाइट्रो ग्रुप विल बी अटैच्ड। ठीक है, नाउ वी डू द ब्रोमिनेशन। ठीक है, बिकॉज इन दिस केस नाइट्रो ग्रुप में क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑक्सीजन इज देयर, नाइट्रो ग्रुप में यू हैव ऑक्सीजन एटम राइट। तो व्हाट इट विल डू इज कि जो हमारा जो लोन पेयर होगा ना, दैट विल बी इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन इन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो वो रिंग में उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वो कहीं और पे इन्वॉल्व है। इस वजह से ये जो NO2 ग्रुप होता है वो रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि जो हमारे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं तो वी कॉल देम एज एक्टिवेटिंग ग्रुप। और उस केस में जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो हमेशा ऑर्थो और पैरा में होता है। ठीक है, बट इन दिस केस जब कोई ऐसा ग्रुप अटैच्ड है विच इज डीएक्टिवेटिंग और इट इज डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग, तो व्हाट विल हैपन इज जो हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा दैट विल बी एट द मेटा पोजिशन ऑलवेज। ठीक है, तो इफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर अटैच्ड वी विल ऑलवेज डू द सब्स्टिट्यूशन एट मेटा प्लेस, मेटा पोजिशन। तो बिकॉज ऑफ दिस NO2 ग्रुप जो हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा वो मेटा पोजिशन पे होगा। तो आप देखो कि हमने एक्चुअल में किया क्या है, यहाँ पे मेटा पोजिशन पे ब्रोमीन लगा दिया है। ठीक है, अब और ठीक है, तो बिकॉज वी वांटेड अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप टू बी अटैच्ड इन द बेंजीन फर्स्ट, इस वजह से हमने नाइट्रेशन करवाया। ठीक है, नहीं तो अगर हम इफ वी वुड हैव इंट्रोड्यूस द हाइड्रोक्सी ग्रुप तो हमें पैरा पोजिशन पे मिल जाता। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट हुआ। फिर उसके बाद दिस इज मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, एम ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब हमें क्या करना है, दिस NO2 ग्रुप को वी सिंपली हैव टू कन्वर्ट इट टू अल्कोहल, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो NO2 को हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए वी विल गो थ्रू द डायज़ोनियम सॉल्ट वे। तो
फर्स्ट वी विल कन्वर्ट NO2 टू एनिलीन, मतलब NH2। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली मेटल रिडक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। यहाँ पे वी विल गेट NH2 और ब्रोमीन इज ऑल विल बी अटैच्ड एट द मेटा पोजिशन। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन situ प्रेपरेशन, उसमें यू हैव NaNO2 NHCl and temperature, so it will be N2Cl। ठीक है, अब हमें N2Cl की जगह पे अल्कोहल लेके आना है। तो एज आई टोल्ड यू, इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता, वी सिंपली हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो हमारे एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट होते हैं, नो दे डिकम्पोज। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सोल्यूशन फॉर्म में है। ठीक है, तो आई मीन आई कैन ऑल्सो राइट इट वाटर ओवर हियर टू इंडिकेट द सोल्यूशन फॉर्म एंड इट विल फाइनली फॉर्म OH। मेटापोजिशन पे ब्रोमीन है एंड फेनॉल, so this is the desired product। Similarly, next also we will, it is aniline to 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है कि फर्स्ट नंबर 1 पोजीशन पे फ्लोरीन एटम है और बाकी 2, 4, 6 पोजीशन पे वी आर हैविंग ब्रोमीन। ठीक है, तो आई मीन इन एनालिन ऑल्सो व्हेन वी वर डिस्कसिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, there we discussed this in a lot detail कि aniline जो होता है because of the because it is highly activating in nature। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग होता है, सो दैट इज वाई इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है। सो व्हेन ब्रोमिनेशन, हम डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करवाते हैं एनिलीन का विदाउट प्रोटेक्टिंग द ग्रुप, विदाउट प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप, तो हमेशा जो मल्टी सब्स्टिट्यूशन हो जाता है एट 2, 4, 6 पोजिशन। ठीक है, तो अगर हम एनिलीन का डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो हमें 2, 4, 6 पे ब्रोमीन मिल जाएगा, वो तो ठीक है, बट यू ऑल्सो हैव दिस फ्लोरीन एटम। ठीक है, तो बेसिकली हम पहले ट्राई ब्रोमिनेशन करवाएंगे यूजिंग द ब्रोमिनेशन थिंग, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, NH2 ग्रुप को फ्लोरीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो आई मीन यू मस्ट हैव गॉट इट टिल नाउ कि अगर हमें एरोमेटिक के केस में फ्लोरीन इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है, सो द ओनली वे इज यूजिंग द डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, पहले भी मैंने बताया है कि साइनाइड, आयोडीन और फ्लोरीन, ये तीन, इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग इट इन द एरोमेटिक रिंग, देन यू हैव टू यूज डायजोनियम सॉल्ट, देयर इज नो अदर वे। ठीक है, तो हमें पहले हम ट्राई ब्रोमिनेशन करवाएंगे, फिर NH2 को N2Cl में कन्वर्ट करेंगे और फिर N2Cl को फ्लोरीन एटम में। तो आई विल राइट डाउन द रिएक्शंस। दिस इज NH, दिस इज एनिलीन। आपने सीधा सीधा ब्रोमिनेशन करवाना है, और ब्रोमिनेशन हम Br2 से नहीं करवाते हैं, हम ब्रोमीन वाटर से करवाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बिना प्रोटेक्टिंग करने, मतलब इफ प्रोटेक्शन वाज, आई टोल्ड यू कि इफ वी आर ट्रीटिंग एनिलीन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, तो NH2 ग्रुप जो होता है वो अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और अमाइड का जो एक्टिवेटिंग नेचर होता है दैट्स लेस एज कम्पेयर टू अमीन, दैट इज वाई जो ब्रोमिनेशन होगा वो सिर्फ पैरा पोजिशन पे होगा, द मेजर प्रोडक्ट। बट हियर हम डायरेक्ट कराएंगे क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट है उसमें हमें ट्राई ब्रोमिनेशन ही चाहिए। ठीक है, तो सिंपली, तो दिस विल बी ब्रोमीन, दिस विल बी ब्रोमीन एंड दिस विल बी ब्रोमीन। ठीक है, तो नाउ यू हैव टू इंट्रोड्यूस और रिप्लेस दिस NH2 ग्रुप बाय फ्लोरीन। ठीक है, तो आप सबसे पहले इन situ प्रिपरेशन करवाओ N2Cl का। ठीक है, बाकी का ब्रोमीन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमेशा NH2 की जगह पे ही N2Cl आएगा और बाकी का जो कंपाउंड है दैट विल रिमेन अनअफेक्टेड। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बना दैट विल बी नेम्ड एज 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, क्योंकि ट्राई ब्रोमो है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, नाउ अगर आपको फ्लोरीन ऐड करवाना है तो ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है। वी यूज दी फ्लोरोबोरिक एसिड विच इज HBF4। तो व्हेन वी विल यूज HBF4 विच इज फ्लोरोबोरिक एसिड, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, N2Cl की जगह पे यू विल हैव BF4।
आई मीन इट इज ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ डायजोनियम सॉल्ट इटसेल्फ, बस यहाँ पे हमारा जो NiN लगा है वो डिफरेंट है। ये भी एक डायजोनियम सॉल्ट ही है। दिस इज ब्रोमीन, दिस ब्रोमीन। ठीक है, तो इफ यू वर टू नेम दिस कंपाउंड, द नेम वुड बी, आई मीन इट इज 2,4,6, तो आपका ट्राई ब्रोमो हो जाएगा, एंड देन यू विल हैव बेंजीन डायजोनियम क्लोरोबोरेट। ठीक है, बस आपको क्लोराइड की जगह पे यहाँ पे फ्लोरोबोरेट यूज करना है, दैट्स इट, बाकी का कंपाउंड इज सेम। ठीक है, नाउ बिकॉज यू हैव गॉट द इंटरमीडिएट दिस प्रेसिपिटेट डायजोनियम सॉल्ट, अब हम क्या करते हैं, इसको सिंपली हीट कर देते हैं। ठीक है, तो हीट करने से ये अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा, और हम अब हमें फ्लोरीन एटम लग जाएगा उसकी जगह पे। दीज आर द ऑर्थो पोजिशन, दिस इज द पैरा पोजिशन। ठीक है, और इस केस में हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आई एम राइटिंग इट माइनस टू डिनोट द प्रोडक्ट, वो BF3 होते हैं और N2 होते हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, सो दिस वाज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन, जो आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं, यू विल गेट थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिसमें कि वो स्टार्टिंग से ही दे डू नॉट रिवील द कंपाउंड्स, वो एक्चुअल कंपाउंड रिवील नहीं करेंगे। दे माइट टेल यू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट देयर आर आइसोमर्स आल्सो पॉसिबल। तो वो आपको खुद पूरा रिएक्शन या फिर पूरा स्टेटमेंट पढ़ के यू नीड टू आइडेंटिफाई कि व्हाट आर द कंपाउंड्स और व्हाट आर द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट। तो द क्वेश्चन सेज कि एरोमेटिक कंपाउंड है ए। ठीक है, तो ए इज द नेम, मतलब दे आर calling some aromatic compound as A. When it is treated with aqueous ammonia and then heated, it will form the compound B. So I will first write down the question and then forms B. ठीक है, तो इसका मतलब, क्योंकि A हमारा aromatic compound है, ठीक है, और when you are treating it with aqueous ammonia, तो obvious सी बात है कि अगर आप अमोनिया से ट्रीट करवा रहे हो तो NH2 ग्रुप कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, तो अब अगर A aromatic है तो B भी aromatic compound ही होगा। ठीक है, B on heating, then our next statement says B on heating with Br2 in KOH forms C, compound C. ठीक है, with formula, now अभी देखो A और B का formula they have not given, they are giving the formula of C, the molecular formula. ठीक है, तो जो molecular formula of C है वो है C6H7N। ठीक है, तो आप ये molecular formula देख के बता सकते हो कि जो हमारा C है वो एक अमीन है। ठीक है, अब वो कैसा अमीन है आपको नहीं पता, क्योंकि ऑब्वियसली बिकॉज वो एरोमेटिक है, तो यू कैन सी कि 6 कार्बन है, तो हमारा बेंजीन रिंग होगा और एक नाइट्रोजन है। ठीक है, कोई और कंपाउंड कोई और ग्रुप अटैच नहीं है, सो दैट मीन्स कि ये फॉर्मूला तो देख के हमें पहले ही पता चल गया कि जो सी है वो एनिलीन है। नाउ आपको करना क्या है, यू नीड टू राइट डाउन द स्ट्रक्चर्स एंड द IUPAC नेम्स ऑफ A, B and C एंड द नेम्स ऑफ A, B and C। ठीक है, तो इसमें एज आई टोल्ड यू कि व्हेन यू आर गिवन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो सबसे पहले आप ये मेक आउट करो कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के स्ट्रक्चर्स, करेस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, इन दिस प्रॉब्लम वी आर ओनली गेटिंग एनिलीन। ठीक है, लेकिन अगर हमारा कोई एलिफैटिक चेन होता, ठीक है, तो उसमें देयर आर सेवरल अदर आइसोमर्स, क्योंकि कभी कभी तो यू कैन गेट 3 or 4 आइसोमर्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो फिर आपको मेक आउट करना पड़ेगा विद द अदर स्टेटमेंट्स दैट आर गिवन कि कौन सा आइसोमर हमें कंसीडर करना है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ हमारा, दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स एनिलीन। ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक दे रखा है। अब अगर दे हैव नॉट गिवन एरोमेटिक, देन this thing can even be, there can be several isomers of aliphatic amines। ठीक है, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है, देन यू कैन ऑल्सो चेंज द पोजिशन ऑफ NH2 ग्रुप, प्राइमरी में ही अलग अलग आइसोमर्स हो सकते हैं। ठीक है, सो बिकॉज दे हैव ऑलरेडी मेंशन्ड एरोमेटिक, तो इस वजह से यू आर ओनली लेफ्ट विद वन चॉइस, दैट इज एनिलीन।
अगर उन्होंने नहीं दिया होता एरोमेटिक, देन देयर विल बी सेवरल चॉइसेस। तो इसका मतलब हमारा जो सी है कंपाउंड वो एनिलीन है। नाउ अब इसमें आप कर क्या रहे हो कि अब सी बन रहा है, मतलब हमारा अमीन बन रहा है यूजिंग बी, और बी में आप किससे रिएक्शन करवा रहे हो, ब्रोमीन क्यूएच। नाउ दिस ब्रोमीन इन क्यूएच एंड देन हीटिंग। ठीक है, तो आपको ये देख के याद आ जाना चाहिए कि दिस इज ओनली इन्वॉल्व इन द हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये जो हमारा सेट ऑफ रिएजेंट है दैट इज इन्वॉल्व इन द हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। और वो रिएक्शन किसके बीच में होता है, दैट इज बिटवीन, आई मीन द रिएक्टेंट इज द अमाइड। नाम से पता चल रहा है ना, हॉफमैन ब्रोमामाइड। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है कि द रिएक्टेंट इज अमाइड एंड द प्रोडक्ट इज अमीन। ठीक है, सो दैट मीन्स कि जो हमारा बी है वो अमाइड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमें एनालीन बनाना है तो हमें कौन सा अमाइड यूज करना पड़ेगा, ठीक है, C6H5 CONH2। ठीक है, और वो CO को, मतलब जो CO होता है उस ग्रुप को हटा के अमीन बना देता है। ठीक है, तो इसका मतलब द सेकेंड स्टेप वुड बी Br2 in KOH is used in Hofmann bromamide degradation। ठीक है, जिसमें कि होता क्या है, अमाइड गिव्स अमीन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी होगा, जो हमारा बी कंपाउंड है दैट इज अमाइड। और कौन सा अमाइड होगा जिससे हमें एनालीन मिलेगा, वो है CONH2। ठीक है, जिसमें से कि ये वाला CO ग्रुप रिमूव हो जाएगा एंड वी विल गेट द एनालीन। नाउ व्हाट इज A? सो A व्हेन इट इज ट्रीटेड विद अमोनिया इट फॉर्म्स B। तो इसका मतलब हमें अमाइड मिल रहा है व्हेन वी आर ट्रीटिंग विद अमोनिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि NH2 ग्रुप जो है वो यहीं से इंट्रोड्यूस हो रहा है, जो हमारा अमोनिया है उसी से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं NH2 ग्रुप। तो इसका मतलब है कि जो हमारा कंपाउंड ए है, यू नो दैट विल बी सम, सम डेरिवेटिव। पहली बात तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो हम किस चीज से रिएक्शन करवाएं एक्वस अमोनिया का, कि वी आर गेटिंग अमाइड दैट इज CONH2। ठीक है, तो इसका मतलब दैट शुड बी बेंजोइक एसिड, उसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो इन द रिएक्शंस ऑफ एसिड द कार्बोक्सिलिक एसिड हमने देखा था कि व्हेन COOH ग्रुप इज ट्रीटेड विद एक्वस अमोनिया तो वो CONH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड से उसका डेरिवेटिव बना रहे हैं। ठीक है, तो एसिड को अमाइड में कन्वर्ट करने का सिर्फ एक ही यही तरीका होता है। तो दैट मीन्स, आई मीन इफ आई राइट डाउन द रिएक्शन, तो एज वी नो कि जो हमारा एसिड होता है व्हेन इट इज ट्रीटेड विद एक्वस अमोनिया। ठीक है, तो एसिड हमारा अगर RCOOH है, तो ऑन ट्रीटिंग विद एक्वस अमोनिया वी विल गेट RCONH2 द डेरिवेटिव अमाइड। तो इफ वी इसका मतलब हमारा जो एसिड है वो A है। तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द कंप्लीट रिएक्शन, जो कि स्टेटमेंट से वी हैव आइडेंटिफाइड द कंपाउंड्स। तो A इज benzoic acid, this is A। When you treat it with aqueous ammonia and heat it, you will get amide, and then ये आपका B है, and then when you are doing the Hoffman bromamide degradation, then we will form a CO will be removed and we are left with aniline। ठीक है, and because it also says to write the names, so structure I have drawn, then name would be benzoic acid, this is amide, so this is benzamide, एंड दिस इज एनालीन। ठीक है, तो आप देख रहे हो इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही द कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्रिपेयर द how to prepare the carboxylic acid derivative from carboxylic acid, that is being used, and the concepts of this amines are also used। ठीक है, so that is why I was saying कि हमेशा you should try to form a link between different class of organic compounds। So the next question, we will move on directly to the next question। So because we have already done a lot of conversions which are related to amines, so the next question says complete the reaction। ठीक है, so you will be given the reactant
as well as the reagent, and you need to complete the reaction. ठीक है, तो आपको reagent से पता लगाना है कि what will happen. So the first question is amine, and the reagents are, this is aniline, and the reagents are chloroform and KOH, and that too alcoholic. ठीक है, तो बेसिकली आपको मेन चीज क्या करनी है, आपको रिएजेंट पे ध्यान देना है, ज्यादा फोकस करना है रिएजेंट पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं विच यू कैन डिफरेंशिएट, आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा रिएक्शन है इफ यू सी एट द रिएजेंट। ठीक है, तो जैसे क्लोरोफॉर्म जो होता है वो अमीन्स अमीन्स के केस में सिर्फ कार्बिलमीन रिएक्शन में यूज होता है। So that means this is the कार्बिलमीन रिएक्शन और अ टेस्ट। ठीक है, और कार्बिलमीन रिएक्शन क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड। तो जो हमारा बाकी का कंपाउंड है दैट विल बी सेम, सॉरी, यहाँ पे NH2 की जगह पे you will get NC. So this is phenyl isocyanide. The name of this compound is phenyl isocyanide, and you will get KCl and water. I mean, you can do the balancing yourself, but you should understand what is happening here. I'll write it down. It is carbylamine reaction, carbylamine test. And it just to remind you, it is only given by the primary aliphatic and aromatic compounds. Then next reaction says you have diazonium salt and you have H3PO2. ठीक है, so by now you must have understood कि हम कौन से रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। As I told you, focus on the reagent. हमारा H3PO2 and that too in the case of diazonium salt, it is only used as a reducing agent. ठीक है, तो N2Cl will get reduced to form benzene. ठीक है, और H3PO2 जो होगा वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो H3PO3 बना देगा। So this will be C6H6, that is benzene, plus N2. This is the oxidation product, and this is HCl. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, इफ यू वांट टू सिंपली रिमूव सम ग्रुप, ठीक है, तो आप उस ग्रुप को पहले, सपोज अगर आपको NO2 हटाना है, ठीक है, रिंग से NO2 आपको बिल्कुल से हटा देना है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली NO2 को अमीन में कन्वर्ट करो, फिर अमीन को N2Cl में कन्वर्ट करो, और N2Cl को when you use these reducing agent or ethanol also, then N2Cl will simply be removed and you will get benzene C6H6. तो उससे आपका क्या हो गया, NO2 group has been removed from the ring. ठीक है, तो यहाँ पे I will mention this reaction is important for the removal of any group from the benzene ring. तो जैसे N2Cl को आप कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस करने के लिए तो यूज कर ही सकते हो, वो हमने फर्स्ट फॉर इंट्रोड्यूसिंग हेलाइड्स और साइनाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, एवरीथिंग। देन यू हैव द हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है, और इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस NO2 ग्रुप, ठीक है, तो इनसे जो लिखे तो आप इंट्रोडक्शन करवा रहे हो, बट इस केस में आप रिमूवल करवा रहे हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज यू हैव एनिलीन, और उसमें यू हैव कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास HNO3 नहीं है रिएजेंट में। ठीक है, अगर HNO3 होता तो नाइट्रेशन हो रहा होता, बट बिकॉज HNO3 इज नॉट देयर, यहाँ पे क्या होगा, सल्फोनेशन। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें हमने सल्फोनेशन किया था। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यू सिंपली हैव टू ऐड, यू विल गेट द सॉल्ट, द हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्ट ओवर हियर। ठीक है, ना यू कैन से कि ये थोड़ा थोड़ा डायोजोनियम सॉल्ट के तरीके लग रहा है, बट आप अगर ध्यान से देखो, सो इट इज नॉट। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्योंकि डायोजोनियम सॉल्ट में हमने क्या देखा था, देयर हैज टू बी R, देयर हैज टू बी N2, मतलब 2 नाइट्रोजन आइटम तो होने ही चाहिए, एंड X माइनस। ठीक है, X माइनस कैन बी HSO4 माइनस हाइड्रोजन सल्फेट, बट यहाँ पे 2 नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा डायोजोनियम सॉल्ट नहीं है, ये नॉर्मल सॉल्ट है, aniline hydrogen sulfate. ठीक है, next reaction is, you can in the second case you can also use ethanol C2H5OH in the place of H3PO2 as a reducing agent.
ठीक है, तो उस केस में हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएगा ऑक्सीडाइज होके, एंड वी विल गेट द बेंजीन रिंग। ठीक है, तो इस केस में हम और C2H5OH भी यूज कर सकते हैं फॉर द रिडक्शन पर्पस। नाउ आई विल लाइक टू रिमाइंड यू कि अगर हम ब्रोमिनेशन करवाते हैं विदाउट प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप, इन द केस ऑफ एरोमेटिक अमीन्स, देन हमारे पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन मिलेगा। बट इफ वी वांट टू प्रोटेक्ट दैट ग्रुप, लाइक इफ वी वांट द मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, देन हम क्या करवाते हैं, हम पहले एनालीन को एसिटिक एनहाइड्राइड में रिएक्ट करवाते हैं। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वी कॉल इट एज अ प्रोटेक्ट, वी कॉल इट एज प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप। ठीक है, तो NH2 ग्रुप इज बेसिकली इट विल कन्वर्ट टू अमाइड। ठीक है, आई विल ड्रॉ इट, C6H5, we have NH, then we have CO, CH3. So this is amide. The name of this compound would be N-phenyl ethamide. N-phenyl ethamide, ठीक है। तो दिस इज अमाइड। इसका जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है वो काफी कम होता है एज कम्पेयर टू अमीन। सो इस वजह से व्हेन यू इस कंपाउंड का अगर आप ब्रोमिनेशन करवाते हो तो आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन मिलेगा विद यू नो द पैरा एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, और अगर आप नाइट्रेशन करवाते हो तो भी आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड NO2 मिलेगा with the para as the major product. Or yes, you will also have this acid, acetic acid or ethanoic acid. Okay. Now you have one more reaction in this exercise. That is also related to N2Cl, diazonium salt. इसमें आप क्या करवा रहे हो, इथेनॉल से रिएक्शन करवा रहे हो। एंड द वे दे हैव रिटन इज, पहले उन्होंने रोमन न्यूमरल में दे हैव रिटन HBF4। ठीक है, तो अगर आप किसी भी मतलब डायजोनियम सॉल्ट, व्हेन यू ट्रीट द डायजोनियम सॉल्ट विद HBF4 इन द फर्स्ट प्लेस, तो ऐसा जब भी आपको दिखता है रिएक्शन में कि रोमन न्यूमरल का यूज किया गया है, तो इसका मतलब है कि इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। ठीक है, पहले स्टेप में आपको HBF4 ऐड करना है और दूसरे स्टेप में आपको NaNO2 ऐड करना है। ठीक है, तो जब आप पहले स्टेप में रिएक्शन करवाते हो HBF4 से, तो यू विल गेट द अनदर डायजोनियम सॉल्ट विच इज फ्लोरोबोरेट। ठीक है, तो N2Cl से कन्वर्ट होके वो N2BF4 माइनस में चला जाएगा विच इज फ्लोरोबोरेट। ठीक है, फिर आप सेकेंड स्टेप में जब NaNO2 का यूज करते हो इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, देन इट विल बी रिप्लेस्ड बाय NO2। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे NO2 ग्रुप है NaNO2 में। ठीक है, तो इट विल सिंपली बी रिप्लेस्ड बाय द NO2 ग्रुप। तो द रिएक्शन विल बी C6H5, N2Cl की जगह पे NO2 आ जाएगा एंड द बाय प्रोडक्ट्स विल बी N2 NaBF4। So these were the reactions. Now, in the last, I will also like to, revise the test once again. So, what all tests, laboratory tests, can be used in the case of amines? ठीक है, तो I mean there are only 3 categories. इसमें बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उन तीनों में से कोई एक ही कैटेगरी ऐसा होगा जो आपको फिट करवाना होगा, यूज करना होगा। ठीक है, तो द फर्स्ट टेस्ट इज द कार्बेलामीन टेस्ट। ठीक है, नाउ कार्बेलामीन टेस्ट में क्या होता है कि बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज यू आर हैविंग अमीन, आप इसको रिएक्शन करवाते हो क्लोरोफॉर्म से। ठीक है, एंड QH, यू विल गेट RNC, दिस इज आइसोसाइनाइड प्लस KCl एंड वाटर। ठीक है, तो एंड दिस इज अल्कोहलिक QH बाय द वे। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इन द कार्बेलामीन रिएक्शन। ठीक है, सो नाउ इसमें आप अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता भी है कि डिफरेंशिएट कैसे करना है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये वाला जो टेस्ट होता है ये सिर्फ प्राइमरी अमीन से देते हैं। ठीक है, तो दिस इज ओनली गिवन बाय प्राइमरी अमीन। ठीक है, तो इस केस में होगा क्या यहाँ पे,
चलो, I'll first write down the other test as well, then I will. This second important one is the Hinsberg test. ठीक है, इसमें क्या होता है कि I am not writing down the complete reactions again because already, I mean, if you want to see the reaction, you can go to that point. But my only motive is to, tell you the physical thing that is happening over in the test. So Hinsberg test is basically a Hinsberg reagent is the benzene sulfonyl chloride. मतलब benzene ring में SO2Cl लगा होता है. ठीक है, so Hinsberg test. So what happens is you can differentiate all of these 1 degree, 2 degree and 3 degree. इसमें क्या होता है कि if you are using 1 degree amine in this test, ठीक है, इस टेस्ट में अगर 1 डिग्री अमीन होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, आप उसका नाम वगैरह आप देख सकते हो वापस से और स्ट्रक्चर भी देख सकते हो. तो इट इज हैविंग हाइड्रोजन एटम. ठीक है, तो उस हाइड्रोजन एटम की वजह से वो कंपाउंड होता है, एसिडिक हो जाता है. ठीक है, तो इस वजह से बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक नेचर दैट प्रोडक्ट इज सल्यूबल इन एल्कली. क्योंकि वो एसिड है तो वो बेस के साथ में रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म द सॉल्ट. ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी से इट इज सल्यूबल इन एल्कली. अब इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है बिकॉज आई एम सेइंग कि जब आप 1 डिग्री अमीन होगा तो नाइट्रोजन आइटम के साथ में एक हाइड्रोजन आइटम भी लगा होगा. सो दैट बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रोजन दैट प्रोडक्ट इज बीइंग एसिडिक. ठीक है, और वो बेस में डिसॉल्व हो जाएगा. 2 डिग्री अमीन में बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग एनी हाइड्रोजन आइटम इट विल बी इनसॉल्युबल इन एल्कली. ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ में या फिर रीजन के साथ में कोई भी रिएक्शन करते हो, ठीक है, सो यू नीड नॉट टू रटोफाई थिंग्स. आपको हर चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, कि कौन से केस में क्या रिजल्ट मिलेगा हमें. 3 डिग्री अमीन देयर विल बी नो रिएक्शन क्योंकि जब हाइड्रोजन ही नहीं होगा 3 डिग्री अमीन में तो कोई चीज आके कैसे रिप्लेस होगी. ठीक है, इन रिएक्शंस में हाइड्रोजन इज बीइंग रिप्लेस्ड. नाउ वी हैव दिस अनदर इम्पोर्टेंट विच इज यूजिंग द नाइट्रस एसिड टेस्ट. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि if you are simply doing the reaction with HNO2, तो अगर 1 डिग्री एलिफैटिक है, ठीक है, तो आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि पहली बात तो इन सीटू प्रिपरेशन होगा. अगर प्राइमरी एलिफैटिक अमीन है तो जो हमारा डायजोनियम सॉल्ट बनेगा HNO2. ठीक है, जो हमारा डायजोनियम सॉल्ट बनेगा दैट इज अनस्टेबल. ठीक है, इसी वजह से बिकॉज ऑफ द अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट हमें डायरेक्टली that will decompose and that will liberate nitrogen gas. But for the case of aromatic aromatic amines के केस में if you are doing the reaction at lower temperatures, ठीक है, तो जो हमारा डायजोनियम सॉल्ट बनता है दैट इज स्टेबल फॉर सम टाइम एंड सो इट विल नॉट डिकम्पोज डायरेक्टली. ठीक है, तो इट विल नॉट लिबरेट नाइट्रोजन गैस. ठीक है, नाउ आप इस चीज को एक और अलग तरीके से भी देख सकते हो. इफ आई मीन द एजोडाइड टेस्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ HNO2 ओनली. बट इसमें क्या है कि आप एक्चुअल में डाई फॉर्मेशन करवाते हो क्योंकि डाई फॉर्मेशन में आपको कलर्स दिखते हैं क्योंकि वो कलर डाई बनता है. तो यू कैन सी क्लियरली सी द ऑरेंज एंड द येलो कलर्स. ठीक है, तो आप उससे जो टेस्ट होता है वो और क्लियर हो जाता है. ठीक है, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस. ठीक है, तो इसमें भी हम लोग काम HNO2 के साथ में ही कर रहे हैं बट एक स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा हो जाता है. क्यों? क्योंकि फॉर द 1 डिग्री एलिफैटिक केस हमें नाइट्रोजन गैस तो मिलेगी बट वी आर नॉट एक्चुअली टेकिंग दिस एसोसाइड टेस्ट इन टर्म्स ऑफ द लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस. हम लोग यहाँ पे डाई के बेसिस पे देख रहे हैं. ठीक है, तो 1 डिग्री के केस में आपको कभी भी डाई फॉर्मेशन नहीं मिलेगा. ठीक है, और 1 डिग्री अगर एरोमेटिक है तो कलर्ड डाई मिलेगा. ठीक है, सो बेसिकली आप इस टेस्ट में क्या कर रहे हो, आई विल ऑल्सो राइट द रिएजेंट्स. आप इसमें सिर्फ HNO2 से रिएक्शन नहीं करवाते हो, HNO2 से करवाते हो देन इन द सेकेंड मतलब इन द रिएक्शन मिक्सचर यू ऐड फेनॉल और एनिलीन.
ठीक है, और भी कंपाउंड्स है, जैसे अगर आप और भी इफ यू रीड द बुक्स यू विल आल्सो गेट कि 2 नाफ्थॉल एक कंपाउंड होता है जो अच्छी इट गिव्स अ गुड क्वालिटी डाई। ठीक है, तो देयर आर अदर कंपाउंड्स, बट आप टेस्टिंग के लिए आप इनको स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, सो आई मीन वी कैन कॉल इट, सो द थर्ड वाला जो टेस्ट है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन यूज दिस फोर्थ टेस्ट, दैट इज एजो डाई टेस्ट, जिसमें कि यू कैन क्लियरली सी द फॉर्मेशन ऑफ डाई। ठीक है, तो दीज आर द 4 टेस्ट, बस यही चारों टेस्ट होते हैं अमीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या डिस्टिंग्विश करने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, सो इफ वी हैव टू डिस्टिंग्विश वन विद आइदर 2 और 3 डिग्री, तब हम कार्बोलमीन टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टेस्ट, बस यही टेस्ट है, यू कैन यूज दीज। So I am done with this chapter now. Just like you can say that one advice that I would like to give you is कि wherever you are studying the chapters, ठीक है, तो if you are preparing for the examination then always आपको लिंक करके चैप्टर्स को पढ़ना है। ठीक है, तो आप हमेशा ये जरूर ध्यान देगा, इफ यू आर डूइंग द प्रिपरेशन और द केमिकल रिएक्शन, आपको ये जरूर देखना है कि आप उसको कन्वर्जन में कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में लिंक्ड कैसे हैं। ठीक है, only then you can at the time of conversions you will be easily able to write down the series reactions, because sometimes they give very confusing reactions also. So that was all for this chapter. All the best, thank you.